समाजवादी पार्टीर आबू आसिम आजमी, एनसीपी अजित पावार ग्रुपेर नवाब मालिक, मिम पार्टीर आतिक आहमेद खान एवं पाशापाशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अर्थात शिवसेना ग्रुपेर शिंदे ग्रुपेर सुरेश पाटेल के माठे नामानो हयेछे। এই চারজনের মধ্যে জোরদার টক্কর হতে চলেছে মানখুর্দ শিবাজীনগর বিধানসভা কেন্দ্রে। সঙ্গে থাকুন, পুরো বিস্তারিত বলবো আপনাদের সামনে। আবু আজমি, নবাব মালিক, জোরদার টক্কর হতে চলেছে এবার 2024 সালের মহারাষ্ট্র নির্বাচনে। এবার মহারাষ্ট্র নির্বাচনে হাই ভোল্টেজ কেন্দ্র মানখুর্দ শিবাজীনগর বিধানসভা কেন্দ্র। আর এই কেন্দ্রে জোরদার টক্কর চলবে এমনই মনে হচ্ছে। মানখুর্দ শিবাজীনগর কেন্দ্রে প্রচার চলছে তুঙ্গে, ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে সমস্ত রাজনৈতিক দল। মানখুর্দ শিবাজীনগর এই কেন্দ্রে হাই ভোল্টেজ কেন্দ্রে এবারে প্রার্থী হয়েছেন সমাজবাদী পার্টি থেকে আবু আসিম আজমি। নবাব মালিক হয়েছেন এনসিপি অজিত পাওয়ারের গ্রুপ থেকে। সুরেশ পাটেল হয়েছেন শিবসেনা গ্রুপ থেকে। একনাথ শিন্দের শিবসেনা গ্রুপ থেকে প্রার্থী হয়েছেন সুরেশ পাটেল। আরেকদিকে এমআইএম প্রার্থী হয়েছেন আতিক আহমেদ খান। চারজনের মধ্যে জোরদার টক্কর হতে পারে এবার শিবাজীনগর মানখুর্দ বিধানসভা কেন্দ্রে। হাই ভোল্টেজ কেন্দ্র এবার মানখুর্দ শিবাজীনগর কেন্দ্র। এবার মানখুর্দ শিবাজীনগর কেন্দ্রে একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার হতে চলেছে, কেননা এখান থেকে দুই দোস্ত মাঠে নেমেছে ভোট যুদ্ধে। একদিকে রয়েছে সমাজবাদী পার্টির 3 বারের বিধায়ক আবু আসিম আজমি মাঠে নেমেছে, আর একদিকে আবু আসিম আজমির চ্যালেঞ্জ, আবু আসিম আজমিকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন এনসিপি পার্টির নবাব মালিক। এই দুই নেতা তাদের রাজনৈতিক জীবনটা শুরু করেছিলেন সমাজবাদী পার্টি থেকে, কিন্তু এখন আলাদা আলাদা লড়ছে। মানখুর্দ শিবাজীনগর কেন্দ্র, এই কেন্দ্রে কিন্তু রোমাঞ্চকর ব্যাপার চলছে। যার কথা বলছিলাম নবাব মালিক, তিনি পরে কিন্তু শরদ পাওয়ারের আঁচল ধরে নেয়। তারপর যখন এনসিপি ভাঙে তখন নবাব মালিক অজিত পাওয়ারের গ্রুপে চলে যায়। নবাব মালিককে নিয়ে বিজেপি কিন্তু প্রচণ্ড নারাজ। এনসিপি অজিত গ্রুপ বিজেপি জোট, কিন্তু নবাবের হয়ে প্রচার করবে না বিজেপি, কারণ তারা নারাজ নবাব মালিককে নিয়ে। বিজেপির আরেক জোট মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দের শিবসেনা গ্রুপের সুরেশ পাটিলকে এই মানখুর্দ শিবাজীনগর কেন্দ্রে মাঠে নামিয়ে দিয়েছেন। চলছে জোর কদমে প্রচার। এবং মিম পার্টির আতিক আহমেদ খান মাঠে নেমেছে, জোর কদমে চলছে তাদের প্রচার। চৌঠামুখী লড়াই এখানে চলবে এমনটাই মনে হচ্ছে, কারণ কোনো দলই কমা নাই। আবু আসিম আজমি 3 বারের বিধায়ক, তিনি তো রয়েছে। এবার যদি জিততে পারে তাহলে তিনি হ্যাট্রিক করবেন, হ্যাট্রিক পার করে 4 বারের বিধায়ক হয়ে যাবেন, একটা রেকর্ড সৃষ্টি করবেন আবু আসিম আজমি। এই কেন্দ্রে টোটাল 41 জন ফর্ম জমা করেছিল প্রার্থী হওয়ার জন্য, তার মধ্যে 22 জন এখনও প্রার্থী রয়ে গেছে। এই সিটে ক্ষমতা কার কত বেশি, চলুন সেই দিকে একটু নজর রাখবো। 2009 সালে এখান থেকে পাশ করেন আবু আসিম আজমি। 2014 সালে পুনরায় পাশ করেন আবু আসিম আজমি। 2019 সালে আবার পরপর হ্যাট্রিক করেন আবু আসিম আজমি। বিজেপি হাওয়া কিন্তু আবু আসিম আজমিকে হারাতে কোনোবারই সক্ষম হয়নি। মুম্বাইয়ের ইস্ট এলাকায় মানখুর্দ শিবাজীনগর এই কেন্দ্রটি পড়ে। লোকনাথ হিন্দি ইউটিউব চ্যানেলের রিপোর্ট অনুযায়ী ইস্ট মুম্বাইয়ের মানখুর্দ শিবাজীনগর, এখানে জনগণের সমস্যা রয়েছে। 1 নম্বর ডাম্পিং সমস্যা। ডাম্পিং সমস্যার যেন সমাধান হয়, জনগণ এটা চাইছে। এবং পাশাপাশি নেশার সমস্যা, নেশা মুক্ত যেন সমাজ গড়ে উঠুক, জনগণ চাইছে। এবং ক্রাইম মুক্ত যেন সমাজ হয়, ক্রাইম বেড়েই চলেছে সেটা যেন কমে যায়, জনগণের আবেদন চাইছে জনগণ। লোকনাথ হিন্দি ইউটিউব চ্যানেলের রিপোর্ট অনুযায়ী এই খবরটি আপনাদেরকে সম্প্রচার করলাম। এবং এবিপি নিউজ সূত্র এই চ্যানেলের খবর অনুযায়ী আপনাদেরকে বাংলা করে পড়ে শোনালাম। আমার এই ভিডিওটি যারা দেখছেন চ্যানেলটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। আই লাভ মাই ইন্ডিয়া, মেরা ভারত মহান। জয় হিন্দ। থ্যাংক ইউ দোস্তों।
এবং তিনারা কি বলেছেন তাদের বক্তব্যও একটু করে শোনাবো আপনাদের। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন আখেরিগঞ্জ নিউজ। लोकांचा उत्साह, लोकांचा आनंद, लोकांचा जोश हा खूप चांगला आहे आणि मला भरोसा आहे आमची सना आणि नवाबाई अगर वो गोंडी की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे तो गोंडी की जनता बेवकूफ़ नहीं, बहुत होशियार है, बहुत होशियार है जनता यहाँ की। और जनता ने अपनी होशियारी 3 मरतबा दिखाई है और इंशाल्लाह चौथी मरतबा भी दिखाएगी। जनाब अबू हाशिम आजमी साहब को बड़ी ताकत से, बड़े वोटों से जीत दिलाएगी। और देखिए, आप पहली मरतबा अबू हाशिम आजमी जीते थे तो कुछ ज्यादा वोटों से जीते, फिर सेकंड टाइम जीते तो और ज्यादा वोट से जीते, थर्ड टाइम जीते तो और ज्यादा वोट से जीते। इंशाल्लाह अब सबका रिकॉर्ड तोड़ के और ज्यादा वोट से जीतेंगे। आपकी लगता है आप लोग गली गली में जाइए और किसी व्यक्तिगत मतलब किसी पार्टी के व्यक्ति किसी नहीं पूछिए आप सवाल। आपको सवाल करना है तो किसी मतलब कि एक आम जनता से जाके पूछिए। आम जनता से जाके पूछिए कि 15 साल गोंडी का क्या हाल था। क्या 15 साल पहले गोंडी में पानी था? फर्स्ट ये इसलिए हम लोग पानी का नाम लेते ना। पानी एक ऐसी अहम जरूरत थी जो हमारी प्यास, हमारी भूख, हमारा स्कूल जाना, हमारा कॉलेज जाना, हमारा काम धाम, हर चीज पे हम उस चीज के लिए तरसे थे। पानी से आ जाइए, फिर बोलिए, पूछिए उनसे 15 साल क्या पहले रोड नंबर 1 से लेकर रोड नंबर 15 तक बना हुआ था? क्या 15 साल 5-5 माले 4-4 माले घर थे? एक घर था हमारे पास, एक घर में 10 बाई 15 बाई 14 फीट के घर में यहाँ के जो परिवार था, हम लोग खुद 2 भाई थे, मैं खुद अपने हमारे एक दोस्त हैं, हम लोग उसके घर पे चले जाते, कुछ दोस्त अहबाब हमारे रिश्तेदार आ जाते थे, हम लोग उनके घर पे जाके सोते थे। लेकिन आज माशाल्लाह जनाब अबू हाशिम आजमी साहब की देन है कि 3-3 4-4 माला घर बना के है। एक में मैं रहता हूँ, एक में मेरी माँ रहती है, एक में किचन है, एक में मेरा बड़ा भाई रहता है। तो इससे ज्यादा आजादी क्या चाहिए? उनसे पूछिए 15 साल पहले क्या हॉस्पिटल यहाँ पे था? आज जहाँ पे आप लोग खड़े मौजूद हैं 500 पेशेंट देखे जाते हैं, 500 पेशेंट। डायलिसिस फ्री मशीन यहाँ पे लगी हुई है, जनाब अबू हाशिम आजमी की पैसों से लगी हुई है। आज उनसे जाके पूछिए कि 3-3 माले स्कूल थे यहाँ पे, क्या एटीएम कार्ड था यहाँ पे, क्या पेट्रोल पंप था यहाँ पे, क्या यहाँ पे फ्लाईओवर था, ब्रिज था? या आज से 15 साल पहले कितने एजुकेशन बच्चे थे, कितने एजुकेटेड लड़के थे? मैं देखता था ज्यादातर ड्रॉप लोग करते थे, 8वीं से लेकर 9वीं 10वीं तक ड्रॉप कर जाते थे। लेकिन आज देखना हर मोहल्ले में, हर घर में देखना, कोई भी बच्चा देखना 12 पास ही मिलेगा आपको। अगर वो किसी चीज की वजह से अगर वो ड्रॉप कर जाता होगा तो शायद अपनी गरीबी की वजह से, किसी और वजह से। गोंडी को नशे के नाम पे जो उछाला जाता है, नशा 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 बदनाम करते हैं। मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से ये बोलूंगा, अल्लाह ने इस जुबान दी है, ये टंक है ना टंक, इस जुबान से ना जो गोंडी को बदनाम कर रहे हैं, मैं उनको ये भी बोल सकता हूँ कि तुम्हारी बहनें ना इस चीज का कारोबार करती हैं, तुम्हारी माएँ बेचती होंगी। ये मैं बता रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ इस चीज के लिए। ये जुबान है, अल्लाह इस जुबान से मैं चाहूँ तो सच बोलूँ, चाहूँ तो झूठ बोलूँ। जब गोंडी में कोई मुद्दा नहीं मिला लोगों को ना, तो गोंडी को बदनाम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नशे का एक नाम दिया जा रहा है। क्या अनुशक्ति नगर में नशा नहीं है? आप जाइए पुलिस की क्राइम रिपोर्ट निकालिए, पुलिस क्राइम रिपोर्ट में आपको आ जाएगा कितना केसेस हुए वहां पे। आप गोंडी शिवाजी नगर की निकालिए, आप देना पुलिस स्टेशन की निकालिए, उनके डिवीजन में 2-2 आती है, 3-3 पुलिस स्टेशन आता है। और सबसे बड़ा हब जो है नशे का, जो हब है वो मालूम कहाँ पे? कॉलोनी में है, टाटा नगर कॉलोनी में, केना मार्केट में, चेंबर वो साइड है, गोंडी गांव वो साइड में, सबसे बड़ा सबको मालूम है। और पूछिए ना कि इनके जो लोग, इनके रिलेटिव किसमें पकड़े गए थे। लेकिन मुझे पर्सनल अटैक नहीं करना, मैं इतना जानता हूँ पूरी मुंबई में नशा होता है, सबसे कम नशा अगर होता है तो गोंडी में। आप खुद देखना, जो मेरे को बार बार गब्बर आजमी बोलते हैं, मैंने उस टाइम पे बोला था जो नशा करते हुए दिखेगा मैं उसको मारूंगा। मैंने मारा, 5-5 FIR किया, मैंने खुद विटनेस बनाओ शाहिद भाई, मैं इस चीज के आप भी गवाह, बहुत सारे न्यूज वाले भाई, हमारे बंधु लोग, सभी लोग गवाह हैं। मैंने उन लोगों पर FIR करवाया, मैं उनका विटनेस बना। यहाँ पे विटनेस बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज राजनीति के अदर पार्टी के लोग जो आए हैं वो सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, ये झूठा इल्जाम है। और गोंडी की जनता इंशाल्लाह ताला 20 तारीख को इनको इस चीज का जवाब देगी। तो आप ये मानते हैं कि ये नशे का जो बात हो रही है कि यहाँ गोंडी में नशा बढ़ा है, वो एक अफवाह है? गोंडी में नशा नहीं बढ़ा है। 15 साल में जो पहले तादाद थी नशे करने वालों की, आज के टाइम में वो तादाद कम हुई है या फिर उतनी है, या फिर आपके हिसाब से है ही नहीं? बहन, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, 15 साल पहले मैं उसी रोड नंबर 8 पे रहता था। किसी एक रिक्शे वाले को आप बोलते थे रोड नंबर 8 पे चलना है तो कोई आने के लिए तैयार नहीं होता था। ये जग जाहिर है और इसके लिए मैं हल्फिया बता सकता हूँ, 50 हजारों में विटनेस खड़ा कर सकता हूँ। पहले गटारी चलती थी, गटारी एक कच्ची दारू आती थी, दारू पी के लोग ना एकदम रोड पे लेटे हुए रहते थे, अपनी बीवियों को मारते थे, अपनी माओ को मारते थे, चरस और गांजा रोड खड़े खड़े लेके लोग ना कोरोना पे पीते थे। गोंडी में हर चीज बहुत अच्छी सुधार आया है,
बहुत अच्छा सुधरा, और नशे के मामले में गोंडी बहुत बहुत बोले बहुत सुधार पे है। लेकिन सिर्फ गोंडी को इसलिए बदनाम कर रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, आप लोग खुद निकलिए ना, न्यूज वाले भाई निकलिए, हजारों की तादाद में रोड पे लोग चलते हैं। आप किसी से पूछे देखिए, कोई नशे में दिखता है कि उनका मेडिकल टेस्ट करवाइए ना। मैं बोलता हूँ पूरी पार्टी के लोगों को बुलाइए, जो आज नवाब मलिक के साथ में घूम रहे हैं, या बुलेट पाटिल के साथ में घूम रहे हैं, या समाजवादी पार्टी के साथ में घूम रहे हैं। अचानक में आप लोग पकड़िए, सबका मेडिकल टेस्ट करवा दीजिए। ये जो बोल रहे 10 साल का बच्चा यहाँ पे करता है, या कौन सा 10 साल का बच्चा नशा करता है यार? यहाँ पे अच्छी अच्छी मस्जिदें हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, अच्छे अच्छे उलमा हैं, हाफिज़े कुरान लड़के निकल रहे हैं, बीओएमएस के डॉक्टर निकल रहे हैं, आईएएस ऑफिसर निकल रहे हैं, आईपीएस निकल रहे हैं। ये क्यों नहीं बता रहे? ये गोंडी को जो बदनाम करे, जब इनकी बहन बेटी का जब ना रिश्ता नहीं आएगा ना, तब इनको मालूम पड़ेगा। जैसे कि अभी एक खबर आई थी कि अब नवाब मलिक 300 रुपया, बुलेट पाटिल 250 रुपया देके आवाम ला रहे हैं, क्या हाशिम भाई भी ऐसे कर रहे हैं? मैं एक बात बोलता हूँ, जिस दिन नॉमिनेशन फॉर्म भरा जा रहा था, तो मैं बॉस को बोला कि मतलब कुछ लोगों को अपना और बुला लेते हैं, तो बोले मैं अकेला नॉमिनेशन फॉर्म भर दूंगा, लेकिन मैं किसी को 1 रुपया नहीं दूंगा। ये अबू हाशिम आजमी की मोहब्बत में लोग आए थे। और आज भी देखिए ना, हम लोग क्या रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारी बहनों को काम में घर में खाना बना रही है। उन लोग बोलिए फात भाई हमको ना पूरे इलेक्शन में 2 से 3 मरतबा बुलाइए, हम आएंगे। अब मैं रोज रोज बुलाऊंगा तो जाहिर सी बात पैसा देने पड़ेंगे। और गोंडी की जनता ना पैसे से पैसा ले लेती है, लेकिन काम ना उसी का करती है जो सच्चा आदमी है, जो हक पे रहता है, उसी का काम करेगा। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे मैं बताया ना कि गोंडी की जनता इस चीज का फैसला कर चुकी है। बाहर वाला कोई नहीं यहाँ पे चाहिए। समाजवादी पार्टी ने काम किया है, और आजमाए हुए को आजमाया नहीं जाता है। इंशाल्लाह वापस से जनाब अबू हाशिम आजमी साहब को क़यादत में ही वो लोग रहेंगे। और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अबू हाशिम आजमी साहब जब कहीं 3 पर्दे की बात आती है, जब कहीं मस्जिद की मीनार पे बात आती है, जब कहीं 3 तलाक की बात आती है, समझ लो, जब कहीं किसी मस्जिद पे हमला होता है, किसी दरगाह पे हमला होता है, तो कोई भी आमदार एज अ मुस्लिम किसी की भी आप एक क्लिप नहीं दिखा सकते हो, किसी का पुस्ता हाल पूछने के लिए नहीं गए होंगे। जब फेक एनकाउंटर होता है यहाँ से लेकर हैदराबाद तक, 8 साल पहले मैं खुद अबू हाशिम आजमी साहब के साथ में गया था। उनके बहुत ही सगे बाप के जैसे थे शाहिद भाई, उनका इंतकाल हो गया था। कसम से उनके जनाजे की नमाज पढ़ के मुझे लगा शायद कैंसिल कर देंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि वहां मेरी कुछ माँ बहनें इंतजार कर रही हैदराबाद में। हैदराबाद गए, धरना मोर्चा किए, फेक इनकाउंटर की पूरी रिपोर्ट निकलवाए, और इवन 15 लाख रुपए उस टाइम पे मुझे मालूम 15 लाख रुपए उनको मदद भी करके आए। क्या जरूरत है उनको हैदराबाद जाने के लिए? क्या जरूरत? वहां पे उनको इलेक्शन लड़वाना है? लेकिन वो आदमी फिक्रमंद है, वो कौम का असल में हकीकत में वो कौम के फिक्रमंद होते हैं, कौम के लिए रहबर है, और उनकी रहनुमाई हर कोई चाहता है। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि सभी लोग मिलके अबू हाशिम आजमी को हराने के प्लान में? आप WWF देखते होंगे और अच्छी अच्छी कुश्ती भी देखते होंगे। देखिए, जब कोई अच्छा पहलवान होता है ना, तो उससे हर कोई आता है हाथ आजमाने के लिए, कि बोलते ना कि कभी हो सकता है कि मैं हरा दूं तो मेरा नाम हो जाएगा। तो लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं बड़े पहलवान से लड़ने के लिए, कि शायद इनको उसमें मिल जाएगी, जीत मिल जाएगी। लेकिन पहलवान तो पहलवान होता है, और वो पहलवान अभी भी सो नहीं रहा है, जाग रहा है और दौड़ रहा है। हम लोग खुद अबू हाशिम आजमी साहब जब चलते हैं ना, तो थक जाते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं थकते हैं, क्योंकि उनका वो जज्बा, वो चीज़ अलग है। आपको फिर बता दो, अल्लाह की बहुत बड़ी उनके ऊपर रहमत है, बुजुर्गों की दुआ है, आलिमों उलमाओं की दुआ है, माओ हमारी माँ बहनों की, यहाँ की गोंडी की गरीब जनता की, हिंदुस्तान की गरीब आवाम की उनके साथ दुआएं चलती है।